सबका। मेरा नाम भुवनेश खोसला है। मैं आर्यप्रतिनिधि सभा अमेरिका का करेंटली along with Pandit Kiran Sadhguru. He's the president of Aryapratinidhi Sabha, South Africa. And to my very right is Shri Yogesh Ayerji. He is leading the group from Aryapratinidhi Sabha, Australia. We'll start with the United States. Arya Samaj in the United States is about 50 years old. We formed the first Arya Samaj in the late 70s. The Aryapratinidhi Sabha America, which is a network of all Arya Samajas across the North American region, is about 38 years old. We are present in about 22 different states with 40 plus organizations, Arya Samaj organizations. We have Vedic Havans all across the United States every Sunday. Some of the key projects that we are running a Sanskriti school, we are running a Montessori school in Houston. Most new Samajas now, like Atlanta, New Jersey, of course Houston, are running Vedic Sanskriti schools, and these are Sunday schools to propagate Vedic values to our young children. Very formal 4-year program where they qualify as Vedic priests and go out to do work in the community. But as part of that, what is important, that we also train them to deal with the current day issues of drug addiction, also counseling of young couples, post-marital counseling, so that takes place. But I think we are also unique in South Africa. Not even in India this happens. In South Africa we've got Hindu chaplains, Hindu priests that are working in the defense force, and they service the needs of our soldiers. And we also have the servicing of needs of prisoners. As you can see worldwide, the Arya Samaj is actively involved in tackling current day issues and burning challenges in our society. When Maharishi Dayananji formed the Arya Samaj, as a revolutionary, he formed it to cut the shackles of the chains that bound our people, both spiritually and socially. And 150 years later, the Arya Samaj continues to tackle social issues on the ground. Not only perform bhashans, which are important, but most importantly takes those bhashans and puts them into practice. The 10 principles designed by Maharishi Dayananji are calls for us all to respond to the need of the hour and uplift our people worldwide. All the Arya Samajas internationally are tackling issues, like you heard, such as gender-based violence, environmental changes and climate change, issues regarding peacekeeping efforts. United Nations, which Yogesh Ayerji will speak about, is one avenue in which the Arya Samaj can literally and progressively be a voice of change and reason. Because the Arya Samaj and its philosophy is an antidote to the challenges we face in society. आर्य समाज की मूवमेंट अच्छे से डिस्क्राइब करती स्वामी जी ने, और आर्य समाज की जो भूमिका रही है वो इसके इंसेप्शन से जब से स्टार्ट हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट प्रेयर एंड संडे सत्संग ओनली. वी वर्क ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमैनिटी. और हिंदी में बोलूँ तो हमारे वेदों का जो मूल है मनुर्भव, कि मनुष्य बनो, और इसी के अंतर्गत मानव सेवा हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा है. क्योंकि जब हमारा उद्देश्य मनुर्भव है, मनुष्य बनने का है, तो मनुष्य बनने के प्रोसेस में जो बाधा आती हैं, वेदर इट्स अ सोशल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, अनएजुकेशन, या फिर जो भी डोगमास हैं, जो भी इलॉजिकल प्रिवेलिंग धर्म है, चाहे उसको क्रिटिसाइज करना पड़े, आर्य समाज और आर्य समाज के मूवमेंट ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, उसने उस क्षेत्र में काम किया है. ऑस्ट्रेलिया में भी ये शुरू हुआ था 24-25 साल पहले. फिजी के जो लोग थे, जहाँ से आर्य समाज फिजी गया,
और फीजी के माध्यम से जब वहाँ कू हुआ तो वहाँ जो फीजी इंडियंस रहते थे उन्होंने फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जब हम मूवमेंट हुआ तो वहाँ से आर्य समाज ऑस्ट्रेलिया में आया। और गुड टू नो कि उन्होंने अपनी हिंदी को, क्योंकि हिंदी भाषा नहीं है, वो साथ साथ कल्चर भी लेके चलती है, उन्होंने उस चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया। वहाँ पर ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी की कहीं भी हो सकती हैं वो वहाँ पर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। जो लोकल एबोरिजिनल हैं उनके बीच में काम करना, उनको डिग्निफाई करना, उनको जो आइडेंटिटी क्राइसिस दे दिया अंग्रेजों के अधिग्रहण ने वहाँ पर, उसको अपलिफ्ट करने वाले आर्य समाज के लोग हैं। एबोरिजिनल्स के बीच में काम करके उनको ये बताना कि आपके रूट्स किस तरह से इंडिया की कल्चर से, इंडिया की संस्कृति से जुड़ते हैं, उसको काम हमने किया। विदेश में रहने वाले जितने भी लोग आते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन विच माइग्रेट्स, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो यहाँ की जो कल्चर है उसको साथ लेके जाना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा योगदान आर्य समाज का है। उसके साथ साथ सेकंड प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम इंडिया वुड बी कि हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको अपनी कल्चर और कल्चर के रूट से कैसे जोड़ के देंगे। और अगर हम वहाँ पे इंस्पिरेशन लें, देन वी गेट टू नो कि ह्यूमन राइट्स का चार्टर उनके पास आज है, लेकिन हमारे पास सदियों से था, है और रहेगा। और इसीलिए आर्य समाज क्योंकि उसको लेके साथ में चलता है, वेदास को लेके साथ में चलता है, इसलिए वो रेलिवेंट था, रेलिवेंट है और रेलिवेंट रहेगा। थैंक यू। अमेरिका की बात करते हैं, एक आप सब क्रिकेट फैंस होंगे और वेस्ट इंडीज़ की बात होती, आप मैप को थोड़ा जूम करेंगे आपको पता चलेगा वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है। वेस्ट इंडीज़ में गयाना, ट्रिनिडाड, सुरीनाम आता है और है, हाँ जी, सब टापू हैं। तो ये सब या डच रूल के अंडर थे, या फ्रेंच के, और या ब्रिटिश रूल के। तो आप हिस्ट्री में जाएंगे, गयानीज हिस्ट्री में हमारे आर्य समाज के लीडर्स 6-6, 8-8, 10-10 साल वहाँ की इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए जेल में रहे। ये आर्य समाज की हिस्ट्री है। जिन देशों की हम बात करते हैं, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो कीनिया हो, चाहे वो गयाना हो, ये ऐसे देश थे जहाँ शायद तो स्कूल होते थे, लेकिन महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए कोई स्कूलिंग सिस्टम नहीं था। और आर्य समाज ने ये कार्य किया। 100 वर्ष पहले उन कंट्रीज में अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर डच रूल, अंडर फ्रेंच रूल, revolutionized in that country to form, educate, provided access to education to them. निखिल साहब, आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न किसी को। सर, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस इवेंट, दिस महासम्मेलन? तो आर्य समाज 1875 में फॉर्म हुआ था। इस साल 150 वर्ष हो रहे हैं। तो उस 150 वर्ष को कमेमोरेट करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन इस्टेब्लिश किया गया, इसको होस्ट किया गया, और पूरी ग्लोबल कम्युनिटी आर्य समाज की यहाँ प्रेजेंट है। 40 देशों से यहाँ लोग आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। तो आपको 4 दिन में दिखाई देंगे। मंच से कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया, आर्य समाज की रेलेवेंस, कंट्रीब्यूशन बताई। यहाँ एक बहुत ही सुंदर एग्जिबिट हॉल, पॉपअप म्यूजियम क्रिएट किया गया है, जो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की, और जो भी हम इन सर्विस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं उसकी एग्जिबिट्स लगाई गई हैं। और एक ये आर्यों का मेला है, टू शो द वर्ल्ड दैट आर्य समाज इज अ रेवोल्यूशन, इट्स अ मूवमेंट एंड इट इज रेडी टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम टुडे। एज योगेश जी, आप थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस वाली बात थी जो उनके पहले कहते हैं आर्य समाज क्या है? इट्स अ सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। आर्य मीन्स नोबल, समाज मीन्स सोसाइटी, एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट?
you build by changing yourself. आप अपने आप को एजुकेट करें, आप सर्विस प्रोजेक्ट करें, आप आर्य बन जाते हैं। ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई मत नहीं है, क्योंकि जब हम वेद के आधार पे बात करते हैं, एज स्वामी जी सेड, वेदास आर फॉर ऑल ह्यूमन। आपको 4 दिन में दिखाई देंगे। मंच से कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया, आर्य समाज की रेलेवेंस कंट्रीब्यूशन बताई। यहाँ एक बहुत ही सुंदर एग्जिबिट हॉल, पॉपअप म्यूजियम क्रिएट किया गया है, जो पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की, और जो भी हम इन सर्विस प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं उसकी एग्जिबिट्स लगाई गई हैं। और एक ये आर्यों का मेला है, टू शो द वर्ल्ड दैट आर्य समाज इज अ रेवोल्यूशन, इट्स अ मूवमेंट, एंड इट इज रेडी टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम टुडे। एज योगेश जी, आप थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस वाली बात थी जो उनके पहले कहते हैं आर्य समाज क्या है? इट्स अ सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। आर्य मीन्स नोबल, समाज मीन्स सोसाइटी। एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट? यू बिल्ड बाय चेंजिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को एजुकेट करें, आप सर्विस प्रोजेक्ट करें, आप आर्य बन जाते हैं। ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई मत नहीं है, क्योंकि जब हम वेद के आधार पे बात करते हैं, एज स्वामी जी सेड, वेदास आर फॉर ऑल ह्यूमन। प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहती है, पर कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो पहला तो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन और ह्यूमैनिटी, क्योंकि इग्नोरेंस मीन्स someone is getting suppressed and someone is suppressing you, whether it's a digital is suppressing you। अगर आज की डेट में देखा जाए तो आपने देखा होगा बहुत सारा मूवमेंट जो ये इस बात का है कि जो बच्चों को ये गैजेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, ये एक अलग प्रकार की एडिक्शन आ गई है। इस पे आर्य समाज काम कर रहा है। तो आर्य समाज इज नॉट अबाउट कास्ट सिस्टम को रिमूव करने की बात कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, क्योंकि वो अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो प्रिवलेंट है बहुत सारे पार्ट्स में। बहुत सारे पार्ट्स में अभी भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के घर में नहीं जा सकती है, अभी भी वो बहुत सारी वो है। तो इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम बदलती जाती हैं, एंड आर्य समाज टेक इट्स स्टांस डिफरेंटली, बिकॉज वी ऑल अबाउट सर्विंग द ह्यूमैनिटी, एंड व्हाटएवर इज मेकिंग अ पर्सन अवे फ्रॉम द नोबेलिटी, वी आर वर्किंग अगेंस्ट दैट। तो पहली जो समस्या ये है, ऑफकोर्स जो ड्रग्स की प्रॉब्लम आपको पता है हर जगह रहती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, जैसे मैंने कहा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, वेस्टर्न वर्ल्ड में छोड़िए, आप इंडिया में भी देख लीजिए, इंडिया में भी बहुत सारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि हम अपने रूट्स से जुड़ नहीं रहे यूथ, और वेस्टर्न कल्चर में वो जाता जा रहा है, तो उसको अपने पे आत्मविश्वास की कमजोरी होती है, उस पर हम काम करते हैं। ऑफकोर्स पहले इसलिए इग्नोरेंट औरतों को, वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था, पर आज वो भोगवाद की संस्कृति में खुद भी बहती जा रही है, और पुरुष समाज भी उसको उसी ढंग से देखना शुरू हो। तो एक देखिए तरीका बदला है, लेकिन शोषण वैसे का वैसा ही है। और आज भी के ये जो अभी पहले कास्ट सिस्टम होता था वो आज भी है, लेकिन अब मनी जो धनवान है वो अब जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अभी वो सारी की समस्याएं थोड़ी सी बदलती जाती हैं, लेकिन आर्य समाज इज वेरी रेलिवेंट इन एवरी फॉर्म एंड प्रिपेयर्ड टू एवरी फॉर्म। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कल मोदी जी आए और उन्होंने रिकग्नाइज किया कि गुरुकुल, डीएवी और सर्विस संस्थाएं अराउंड द वर्ल्ड आर्य समाज का काम देखता है। We may not be good at marketing. I'll say that as a current leader. लेकिन आप देखिए इतने मिशन चल रहे हैं। मैं से ऐड करूंगा, पंडित सदगुरु will talk about the common problem in South Africa about conversion and how Arya Samaj is helping. Pandit ji?